Hello everyone. First of all, a very good afternoon to all of you. I am Sakib Anwar. As I told you earlier, I will teach you the basic of graphic design. Today we will cover the basic definition of graphic design, who is graphic designer, quality of a graphic designer, and components of graphic design. Before moving further and start our session, I want to kindly inform you all the general instructions of this session you have to follow. Make sure that your mic and camera should be off during the whole session. If you have any queries, then you can ask. And the recorded lecture of all session will be provided on our YouTube handle Smiling Success, and attendance will be taken in the last 5 minutes. And there are also some important announcements that you have to keep in mind. First, some assignment will be given to you between the session. You have to complete them and upload it on Google Drive. That link will be provided you later by us. After completing all the training sessions, there will be a final MCQ test, qualifying test for the training certificate. After this 1 month training sessions, we will provide you 1 month internship as we told you in the registration step. And we will provide job opportunity to the person who are active in all the sessions and complete all the assignments properly and qualify the final exam, and whose performance is excellence in internship program. So be regular and active in all the sessions, and if you are looking for job opportunity, then this opportunity can become a life changing opportunity for you. So let's start the today's session. Please be active. Simple, what is graphic design? Graphic design is the process and art of combining text and graphics and communicating an effective message in the design of logos, graphics, brochures, newsletters, posters, signs, and any other type of visual communication. Simple, it is the process to combine the text and graphics to communicate an effective message, not by saying in the term of visual communication. This is the process. Simply we select a layout, then text and images to combine all the three to communicate an visual message. These are some examples of visual communication. First of all, that is website, advertisement, company advertisements. It is also called flyers in the simple term. इसे हम एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं, फ्लायर्स भी कहते हैं टेक्निकल टर्म में. And some logos and business magazine covers. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं विजुअल कम्युनिकेशन के जो हम नॉर्मली हम जानते हैं. इसके अलग अलग कैटेगरीज है जो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, लेकिन बेसिकली यही है कि विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स जो हम डेली लाइफ में देखते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड हु इज अ ग्राफिक डिजाइनर. हम ग्राफिक डिजाइनर किसे कह सकते हैं या कौन होता है ग्राफिक डिजाइनर. Graphic designers or graphic artists, yes, we also call graphic artists, plan, analyze, and create visual solution to communications problem. ग्राफिक डिजाइनर हमारा प्लान करता है, एनालाइज करता है और विजुअल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है जो हमें बोलना ना पड़े.
जो हम चीज़ें हम सामने से रिप्रेजेंट कर सके। अगर ये हमारा पोस्टर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है, ये फोटोज देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये कुछ हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड होगा। जैसे इंस्टाग्राम का लोगो है, फेसबुक का लोगो है, ट्विटर का लोगो है। They decide the most effective way of getting a message across in print, electronic and film media। जो हमारे डिज़ाइनर रहता है वो मोस्ट इंश्योर करता है कि जो हम मैसेज दे रहे हैं, जो या हम बना रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारा क्रिएटिव्स है, जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइनर है वो इंश्योर करता है कि हम एक पर्टिकुलर मैसेज दे पाए कि जो हम कहना चाह रहे हैं इफेक्टिव वे थ्रू द प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड फिल्म मीडिया। ये टाइप्स ऑफ मीडियाज में आते हैं जो हमारे इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें इस तरीके से हमें आगे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को जो हम कहना चाह रहे हैं। देन कि ग्राफिक डिज़ाइनर डेवलप क्या करता है, क्या क्या ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या है। टू क्रिएट मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड जर्नल, जो हम नॉर्मली देखते हैं, चाहे मैगजीन का कवर पेज हो या फिर अंदर की चीज़ें हो, कंटेंट हो, लेआउट हो, या फिर न्यूज़पेपर में हम लेआउट्स देखते हैं कि कौन सा कंटेंट कहाँ जाना है, कितना स्पेस देना है, वो चीज़ें भी एक हमारा ग्राफिक डिज़ाइनर ही करता है। फिर सेकंड हमारा कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन। ये कॉर्पोरेट सोसाइटी, उसमें कॉर्पोरेट फील्ड्स में भी होता है, जो हमें रिकॉर्ड्स बनाने हैं, रिपोर्ट्स बनाने हैं, या फिर हमें पब्लिकेशन प्रोवाइड करनी है एडवर्टीजमेंट के लिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि सबको तो जाके हम कह नहीं सकते हैं। सिंपल हमें एक ब्रोचर हो या रिपोर्ट्स हो या पब्लिकेशन हो इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट जो हम आगे शो कर सकते हैं। जैसे हम बैनर बना के हम रोड साइड पे लगा दिया हमने, या फिर बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट होल्डर्स रहते हैं वो लगा दिए, होल्डिंग्स लगा दिए। फिर थर्ड प्रमोशनल डिस्प्लेज एंड पैकेजिंग। हम प्रमोशनल डिस्प्लेज देखते हैं रोड साइड पे चलते हुए कि जो होल्डिंग्स एरिया रहते हैं वहाँ लगे रहते हैं। फिर पैकेजिंग पे ये कंपनी का स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो उसका रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जैसे हम ऑनलाइन जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो की पैकेजिंग में आता है, उसका टेप लगा रहता है, हम पता लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारा जोमेटो का है। फिर कमर्शियल डिस्प्लेज में, बिलबोर्ड्स में, फिर ब्रोचर्स में, कंपनी के ब्रोचर्स हो जाते हैं। फिर कंपनी लोगोज एंड साइंस। जो हमारा कंपनी का लोगो है वो भी हमारा ग्राफिक डिज़ाइनर ही डेवलप करता है, या फिर जो कंपनी का साइन हो गया, लोगो हो गया, वो भी हमारा रहता है। जैसे ये हमारा कंपनी का लोगो है, यहाँ भी हम एक नए यहाँ पे कुछ हम कहना चाह रहे हैं, जैसे ट्रस्ट इन योर सेल्फ, स्माइलिंग सक्सेस, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, तो ये हमारा मोटो हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ साइंस हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड नेक्स्ट हो गया हमारा वेब पेजेस एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए, कि जो हमारे वेब पेजेस रहते हैं, जो हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो जो हमारा कंटेंट खुल के आता है, जो हमें स्क्रीन पे दिखता है, वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर रहता है। एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स हम मल्टीमीडिया में देखते हैं। नेक्स्ट, बीइंग अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर, हमारे अंदर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कि अगर हमारा एक ग्राफिक डिज़ाइनर है उसके अंदर स्किल्स क्या होनी चाहिए, या फिर उसके अंदर उसको क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बंदा क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, कि हाँ चीज़ों को क्रिएटिव नज़रिए से देखे कि सामने हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, कौन सा मोस्ट इफेक्टिव वे होगा जो हम सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो सामने वाले को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। सेकंड, पैशनेट होना चाहिए उसके अंदर, काम के अकॉर्डिंग पैशन होना चाहिए, कि हाँ उसको काम में इंटरेस्ट हो, ये नहीं कि बस काम को काम की तरह ले रहा है। उसके अंदर पैशन होना चाहिए कि ये चीज़ मेरे को करनी है तो करनी है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि नई नई चीज़ें हमें डेवलप करनी है और भी अच्छा करना है। ओपननेस होनी चाहिए, एबिलिटी टू टेक क्रिटिसिज्म एंड पेशेंस। पेशेंस तो हर काम में ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी काम हो या हम कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर पेशेंस रखनी पड़ती है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमने डिज़ाइन बनाया, वो उतना हमारा ट्रेंड में नहीं गया,
तो इससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, इससे हमें आगे जाके इम्प्रूव करना है कि जो हमने इस बार बनाया है वो आगे जाके हमें और इम्प्रूव करना है पेशेंस के साथ में। ये नहीं कि अगर हमारा एक प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो कंपनी बंद करके चले जाने हैं। सबसे मेन हमारा ग्राफिक डिजाइन में कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स की, ग्राफिक डिजाइन बनता किस चीज से, उसके अंदर के कंपोनेंट्स क्या है या फिर एलिमेंट्स, द मेन कंपोनेंट्स दैट शुड बी इन आवर ग्राफिक डिजाइन। इसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए तो होनी चाहिए। या फिर हमारा जो ग्राफिक डिजाइन होगा, अगर सिंपली हमारा कोई भी डिजाइन है उसके अंदर ये 7 चीजें होनी चाहिए। तो बेसिकली देयर आर 7 important components of graphic design. That is, first of all, line, shape, third one color, space, texture, scale and typography, जो हम आगे फर्दर स्टडीज डीपली स्टडी करेंगे हम आगे के पीपीटीज में कि हमारी ये चीजें तो होती है ग्राफिक डिजाइन के अंदर, दैट शुड बी गिवन, इसके बिना कुछ भी नहीं। देन फर्स्ट one would be line. What is line? Simply, it is any two connected points in a design. Lines divide space, stress on specific words, phrases, and creating patterns. It directs the viewer attentions in the desired direction. सिंपली हम लाइन क्या कह सकते हैं कि हमने कोई भी दो पॉइंट्स को सिंपली हमने कनेक्ट किया ये कुछ शो करने के लिए। Lines divide space, stress on specific words, phrases, and creating patterns. It directs the viewer attention in the desired direction. जो हमें रिप्रेजेंट करना है व्यूअर्स को अटेंशन लेने के लिए कि उसको ये चीज़ दिखनी चाहिए। अब लाइन हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? लाइन्स कैन बी यूज्ड फॉर फर्स्ट organize information to provide the basic information about the design or to highlight or stress words, to highlight the words. सिंपली जैसे हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे डिज़ाइन से रिलेटेड, तो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। जो हम नॉर्मली भी हम अगर हम नोट्स या कुछ बनाते हैं तो हम हाईलाइट करने के लिए कि टीचर्स को सबसे पहले दिखे या कुछ इम्पोर्टेंट है तो उसे हमने हाईलाइट कर दिया। तो सिंपली हाईलाइट्स द वर्ड्स, कनेक्ट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, टू कनेक्ट द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अलग अलग चीज़ें हैं उसको सिंपल एक वर्ड्स में लेके आना या एक चीज़ में रिप्रेजेंट करना। इसके लिए हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने एरो से शो कर दिया कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ जा रही है या यही इम्पोर्टेंट है। टू आउटलाइन अ फोटो और सेट इट फ्रॉम अदर एलिमेंट, अगर हमारा एक फोटो है उसे आउटलाइन करना है, उसे हाईलाइट करना है या रिप्रेजेंट करना है कि ये चीज़ हो रही है, कि व्यूवर्स का अटेंशन उस पर डायरेक्टली जाए, उसके लिए टू क्रिएट अ ग्रिड। ग्रिड हम जैसे कोई भी हमारा चीज़ रहता है, हम नॉर्मल फोटोज भी लेते हैं, कैमरा ओपन करते हैं तो उसमें ग्रिड लाइंस रहती है जो हमारे स्पेसिफिक लोकेशन को लोकेट करती है, जो हमें एक नॉर्मल लेआउट प्रोवाइड करता है कि ये हमारा फोटो एरिया है या हम इतनी चीज़ें हमारे अंदर में आएगी फोटो लेते समय, इससे हमारी फोटोज बिल्कुल वो हो, सीधी हो, टिल्ट ना हो। क्रिएट अ चार्ट और ग्राफ, सिंपली हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी टू क्रिएट अ चार्ट और ग्राफ, जो हम स्टडीज में भी यूज करते हैं, टेबल बनाने के लिए हम लाइन का यूज करते हैं, चार्ट्स बनाने के लिए करते हैं, ग्राफ उसमें रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डेटा एनालिसिस के लिए कि हमारी लाइंस यहाँ से यहाँ जा रही है, या हमारा इतना कोई भी प्रोडक्शन या सेल्स हो रहा है उसके लिए भी हम ग्राफ्स में यूज करते हैं लाइंस को टू रिप्रेजेंट दिस समथिंग and to achieve the viewer's attention. And next one, create a pattern or rhythm by drawing many lines. हम जैसे मल्टीपल लाइंस को ज्वाइन के हम एक पैटर्न ज्वाइन करके हम पैटर्न बना सकते हैं, एक हम रिदम दे सकते हैं। क्रिएट अ पैटर्न और रिदम बाय ड्राइंग मैनी लाइंस, हमने मल्टीपल लाइंस को ज्वाइन के करके एक पैटर्न बना दिया या फिर हमने एक रिदम बता दिया। रिदम मतलब हमारा फ्लो, कि हमारा फ्लो किस साइड जा रहा है, किसकी ओर जा रहा है या रिप्रेजेंट करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। टू सजेस्ट एन इमोशन,
ये भी हमारा एक मेन फैक्ट है। लाइन जिसके लिए हम यूज करते हैं कि हम उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं या हम सजेस्ट कर रहे हैं। एंड ये रहे कुछ टाइप्स ऑफ लाइंस के जो हम नॉर्मली जानते हैं कि हम कितने तरह के लाइंस होते हैं। जो हमने बेसिकली हमें पता है जो बेसिक लाइंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल, जो हमारी पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, नॉर्मली हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। वर्टिकल, जो हमारी इंक्लाइन लाइन रहती है। डायगोनल, जो हमारी टिल्ट रहती है किसी भी एंगल पे। ब्रोकन, जो हम डॉट डॉट से शो करते हैं, या फिर जिगजैग लाइन जिसका कोई पैटर्न नहीं होता है। या फिर वेवी फॉर्म, जो हम साउंड वेव की तरह में उसके वेव्स निकल रहे हो। या फिर कर्व्स हो सकते हैं, या स्पाइरल जो लाइक जलेबी की शेप में हो। सेकंड हमारा मेन एलिमेंट है शेप। शेप that it is defined by boundaries like color or line. All components come together to make and shape. Three types of shape are geometrical, natural and abstracted. जो हम शेप रहता है, कोई भी हमें अगर डिजाइन बनाना है तो उसके अंदर हमें चीजें एलिमेंट शो करनी है, तो उसको सिंपली तो हम वर्ड से लिख नहीं सकते हैं, या फिर लिखेंगे तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो हम उसको कुछ शेप दे देते हैं टू रिप्रेजेंट समथिंग और टू लुकिंग अट्रैक्टिव। हम शेप शेप के साथ साथ क्या कर सकते हैं? टू टू क्रॉप अ फोटो इन एन इंटरेस्टिंग वे, सच एज इन एन ओवल। हम शेप है उसको हमने क्रॉप करके एक ओवल का शेप दे दी, जो हमारा अंडाकार शेप रहता है, एग का शेप रहता है। टू सिंबलाइज एन आइडिया, हमने शेप दे के एक आइडिया जनरेट कर दिया कि ये हम इस चीज को हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड टू मेक अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट मोर इंटरेस्टिंग बाय सेटिंग द टेक्स्ट इनटू द शेप, हमने कुछ टेक्स्ट का यूज करके एक शेप बना दिया, कि हमने कुछ लिखा उसके अंदर हमने एक शेप बना दिया कि टू रिप्रेजेंट समथिंग और टू लुक अट्रैक्टिव, कि जो हमारा व्यूअर है वो वो चीज देखते हुए उसको रिप्रेजेंट करे या फिर उसके मन में खटक जाए कि वो ये चीज हो रही है। एंड नेक्स्ट वन, टू क्रिएट अ न्यू फॉर्मेट। शेप से सिंपल हम फॉर्मेट भी रेडी कर सकते हैं, जो हमारा पुराना ओल्ड वर्जन आ रहा है उसके अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं। जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, नया फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, टू हाईलाइट इन्फॉर्मेशन। शेप से हम इंफॉर्मेशन भी कर रहे हैं, हाईलाइट इन्फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हमने शेप दे दिया है, सर्कल दे दिया या स्क्वायर दे दिया टू रिप्रेजेंट या टू लुक अट्रैक्टिव। सिंपल, ये हम जो डेली लाइफ में कुछ हम शेप्स देखते हैं, ये रहे। सर्कल हो गया, ओवल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, डायमंड शेप, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन, जिसके 10 साइड्स होती है। इसे हम अलग अलग शेप भी दे सकते हैं अगर फर्दर है, अगर जो, क्योंकि ये शेप्स बने हुए कोई भी दो पॉइंट को जोड़ के हमने लाइन बनाया और उस लाइन को हमने एक शेप दे दी, तो ये सेम चीज को हम अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हैं। जो जो हम टूल्स यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए उसके अंदर ये चीजें हम कर सकते हैं, कि जैसे अगर ये शेप सर्कल है तो उसको सर्कल ना उसके अंदर भी हम उसको हम ओवल की शेप में भी ला सकते हैं। एंड थर्ड हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक डिजाइन के अंदर है, जो हमारा कलर, मेन हमारा कलर रहता है, कि अगर जो कलर हमें दूर से भी दिख जाए कि ये कुछ चीज है जो हमें अट्रैक्ट करे, हमारी आंखों के कैच करे या अट्रैक्टिव लुक दे, जिसके लिए हम अच्छे कलर्स का यूज कर सके। एंड कलर्स हैज द मोस्ट पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। जो कलर होगा, जो ऑडियंस को जो कलर पसंद है या जो उसका पसंदीदा कलर है वो हुआ, तो ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इम्पैक्ट देगा उसको। इट कैन मेक अ स्टेटमेंट इंडिविजुअली एंड विद अदर कंपोनेंट्स। ये कलर्स को हम सिंपल भी यूज कर सकते हैं या फिर अदर चीजों के साथ मिला के, जो हमारे टाइप्स ऑफ कलर्स में आ जाते हैं, हमारे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी और टर्शरी कलर। हमने प्राइमरी के अंदर में कलर मिला दिया, जो तीसरा हमारा कलर ऑप्टेन हुआ उसे हम टर्शरी कहते हैं। एंड वेल क्राफ्टेड कलर थ्योरी डेवलप्स मूड एंड इमोशंस टुवर्ड्स डिजाइन एंड क्रिएट्स विजुअल इंटरेस्ट। जो अगर हमारा कलर है वो देखने में अच्छा होना चाहिए, विजुअल इंटरेस्ट लगे लोगों के अंदर उसे देखने की, या फिर
उसे नोटिस करने के अंदर लोग को कलर नोटिस करना चाहिए कि वो लोग उसे दूर से भी अगर कुछ कलर देख रहे या कुछ बैनर हमने देखा, होल्डिंग्स देखा, तो दूर से देखने पे अगर हमें अच्छा लगा तो हम और पास जाके देखेंगे कि ये चीज़ कह क्या रहा है, ये है किस चीज़ के लिए। तो कलर हमारा किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? कलर कैन बी यूज टू हाईलाइट important elements such as headlines and subheads. हमें हेडलाइंस देनी है तो हेडलाइंस को मोस्टली या फिर नॉर्मली जो सबको पसंदीदा कलर रहता है, रेड कलर से हम हेडलाइंस देते हैं कि जो हमारा अट्रैक्टिव लगे, लुकिंग रहे। और फिर सब हेड जो उसके सब हेडिंग्स रहते हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम हेडलाइंस में कर लें। जैसे हमारी न्यूज़ हेडलाइंस आती है तो मोस्टली वो रेड या ब्लैक से रहती है। जो हमारा पेरेंट कलर रहता है, जो प्राइमरी कलर्स हैं, जो देखने में ही अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। टू अट्रैक्ट द आई, जो मैंने अभी बताया कि कलर्स हमारा आई को अट्रैक्ट करता है, लोगों के विजन को अट्रैक्ट करता है। टू सिग्नल द रीडर वेयर टू लुक फर्स्ट, ये भी मैंने अभी बताया कि जो रीडर है या फिर जो ऑब्जर्वर है वो देखना क्या चाह रहा है और हमें क्या चीज़ पहले दिखानी है। अगर हमने रेड से उसे मार्क किया तो किसी को भी लगे कि ये हाईलाइटेड है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना हमारे लिए ज़रूरी होगा कि कहना क्या चाह रहा है। बेसिक जो हमारा होल्डिंग है या डिज़ाइन है, इसका मोटिव क्या है। टू क्रिएट एन इमेज और अ मूड, हमें फिर इमेज क्रिएट करने के लिए या फिर मूड सही करने के लिए, जैसे कोई गंदा सा कलर या भद्दा सा कलर यूज करते हैं जो अगर किसी व्यूवर को पसंद नहीं है तो वो देख के ही उसका मूड खराब हो जाएगा, तो वो आगे की चीजें देखेगा ही नहीं। अगर हम बिल्कुल गंदा सा कलर जैसे बिल्कुल डार्क ब्लैक ले लिया या फिर ब्राउन ले लिया हमने, बिल्कुल पंची कलर हो गया जो व्यूअर्स के आई को अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन नेगेटिव वे में अट्रैक्ट कर रहा है। तो टाई अ लेआउट टुगेदर, लेआउट बनाने के लिए भी हम कलर्स का यूज करते हैं। साइड साइड से हमने बॉर्डर दे दी कलर्स की कि अंदर की चीजें हमें इफेक्टिव लगे। टू ऑर्गेनाइज, जो हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर सेट करना चाह रहे हैं कि हमें इस वे में चाहिए। टू ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर और आइसोलेट देम, ग्रुपिंग के लिए भी कलर्स का यूज करते हैं। जैसे हमने अगर रंगोली दिखानी है या फिर कुछ दिखाना है, या फिर सिंपल हमारा एग्जांपल हो गया जो रेनबो रहता है, रेनबो में भी 7 कलर है तो उसको हम दिखाना है, तो उसके लिए भी हम कलर्स का यूज करेंगे जो उसके बेसिक रेनबो के कलर है, विब और जो आप लोग को पता होगा, या फिर आइसोलेट दम या उनका यूज करके उसके अंदर 2-3 कलर्स को यूज करके ग्रुपिंग करने के लिए। टू प्रोवोक इमोशंस, कलर से भी हम इमोशन दिखा सकते हैं। अगर रेड है तो रेड अलर्टिंग का सिग्नल होता है। ये रहा हमारा एक कलर व्हील जो हम मोस्टली यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी अगर हमने रेड कलर लिया, सेकेंडरी कलर हमारा ऑरेंज है, तो दोनों का मिक्स करेंगे तो हमारा टर्शरी कलर बन के आएगा रेड ऑरेंज। वैसे ही हमारा यहाँ पे एग्जांपल ले लिया हमने, प्राइमरी कलर हमने येलो ले लिया, सेकेंडरी कलर हमारा ग्रीन है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो थर्ड हमारा टर्शरी कलर आएगा ग्रीन येलो का, जो हमारा लाइट ग्रीन होगा। तो टर्शरी वही होता है टू मिक्स टू और मोर कलर्स टू फाइंड द थर्ड वन। और ये रहे कुछ हमारे साइकोलॉजी ऑफ कलर। साइकोलॉजी का मतलब टू डील विद द माइंडसेट कि कलर हमारा क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। जैसे रेड कलर है तो रेड कलर एक्साइटमेंट का होता है, स्ट्रेंथ का होता है, लव का भी होता है, एंड एनर्जी भी शो करता है कि रेड कलर से हमने दिखाना चाह रहे हैं कि कितना अट्रैक्टिव है। सेकंड हमारा ऑरेंज कलर है जिसका बेसिक कॉन्फिडेंस के लिए यूज होता है, सक्सेस, ब्रेवरी या फिर सोशबिलिटी के लिए। फिर थर्ड येलो तो क्रिएटिविटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, वार्मथ के लिए या फिर चीयर करने के लिए। ऐसे सिंपल हमारे ये 10 कलर्स होते हैं जो बेसिक हमारे जो नॉन कलर्स है जो हम यूज करते हैं। फिर वैसे ही ब्लू कलर है टू रिप्रेजेंट ट्रस्ट, पीस, लॉयल्टी, कॉम्पिटेंस। देन पिंक, कंपैशन, सिंसेरिटी, सोफिस्टिकेशन, स्वीट। ऐसे कि ये हमारे 10 कलर है। फिर हमारा
फेवरेट, मोस्ट यूज्ड, वाइट एंड ब्लैक। ब्लैक फॉर्मेलिटी के लिए, ड्रामेटिक के लिए, सोफिस्टिकेशन के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए। वाइट हमारा मोस्ट यूज्ड, जो हम बैकग्राउंड में मोस्टली यूज करते हैं। वाइट कलर हमारा क्लीन होता है, टू रिप्रेजेंट क्लीननेस, सिंप्लिसिटी, इनोसेंस ऑन एंड ऑनेस्ट। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हमारे कलर से रिलेटेड है, जो हम कलर्स के को यूज करने के लिए या फिर कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम बोलते हैं। ये रहा हुई, ये हमारा अनदर वर्ड है कलर के लिए, कि समटाइम्स हमें कलर्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हुई लिखा हुआ मिलेगा। फिर सेकंड हो गया हमारा क्रोमा, इट इज द इंटेंसिटी और प्योरिटी ऑफ कलर। क्रोमा ही हमारा, क्रोमा को हम सेकंड टर्म में सैचुरेशन कहते हैं। सैचुरेशन का भी मतलब यही होता है, प्योरिटी ऑफ कलर। थर्ड हो गया हमारा टिंट। टिंट हमारा वो होता है जो हम कलर को मिक्स कर रहे हैं व्हाइट के साथ में। टिंट इज अ कलर मिक्स विद व्हाइट। जो हमारा कलर व्हाइट के साथ मिक्स हो रहा है उसे हम टिंट कहेंगे। जो हम नॉर्मली ये चीजें हमें सुनने को मिलती है कलर्स के टर्म में, या फिर हम कहीं भी जाते हैं या फिर हम फोन यूज कर रहे हैं कुछ डिजाइन बनाने के लिए, कलर, टोन, टिंट, क्रोमा। फिर नेक्स्ट वन हमारा शेड, जो हम ब्लैक के साथ मिक्स करेंगे कलर को, तो वो चीज हम शेड वर्ड यूज करेंगे उस कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये रहे कुछ, जैसे मैंने बताया सैचुरेशन, सैचुरेशन का भी मतलब यही होता है। क्रोमा, ये भी इसका मतलब यही होता है कि हाउ मच प्योर कलर इज यूज्ड, कि कलर की प्योरिटी कितनी है, इज द अमाउंट ऑफ प्योरिटी ऑफ कलर या इंटेंसिटी ऑफ कलर। फिर सेकंड हो गया हमारा टिंट, जो हमने व्हाइट के साथ में मिक्स किया। टोन, जो हमने ग्रे के साथ में मिक्स किया, या फिर शेड जो हमने ब्लैक के साथ में मिक्स किया, वही जो अनदर हमारा नेम है। अगर इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो आगे टेस्ट भी होगा उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, या फिर ये जानकारी आपको होनी भी चाहिए अगर आप कुछ डिजाइन कर रहे हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड में या फिर इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे नॉर्मली ये चीजें हम यूज करते हैं बोलने या कहने के लिए। फिर सामने वाला भी बोलेगा कि इसका शेड कम करो, टोन इसका हल्का है, फिर क्रोमा बूस्ट करो, सैचुरेटेड है, इमेज सैचुरेटेड है, सैचुरेशन आ रही है। फिर नेक्स्ट हमारा है एलिमेंट या कंपोनेंट्स कह सकते हैं डिजाइन का, दैट इज स्पेस। स्पेस सिंपली इट इज द एरिया बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स of a design. It defines importance and leads the viewer through the design. Effective use of space makes the user perceive the design better and positively. स्पेस हमारा वो हुआ जो हमारा स्पेस लुक वाइज कितना अच्छा है। अगर हम कंटेंट है तो सारी चीजें हमारी घिचपिच ना होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट ना हो, बिल्कुल टच ना कर रही हो, उसके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव लगना चाहिए हमारा। स्पेस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं या किस चीज के लिए स्पेस यूज कर किया जा सकता है। स्पेस कैन बी यूज टू गिव द आई अ विजुअल रेस्ट। जैसे हमारा कोई भी डिजाइन है, अगर बिल्कुल पूरा फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, तो आंख को पंची लगेगा। अगर वहीं पे हमारा स्पेस है तो विजुअल मतलब आंख को रेस्ट लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ चीजें हुई। टू क्रिएट टाइज बिटवीन एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स है तो उसके बीच में टाई बनाने के लिए, मतलब इनके बीच में क्या रिलेशन है, या बीच में कुछ हमने टाई मतलब कि बीच में जो कुछ जोड़ रहा है इन्हें एलिमेंट्स को, जैसे सारी चीजें हो रही है तो इनके बीच का स्पेस कितना है, वे एक दूसरे से कनेक्टेड कितने हैं। टू हाईलाइट एन एलिमेंट, टू हाईलाइट द एलिमेंट स्पेस को, पुट अ लॉट ऑफ वाइट स्पेस अराउंड समथिंग इंपॉर्टेंट टू कॉल अटेंशन टू इट, जो हमें चीजें दिखानी है। put a lot of white space around something important to call attention to it, जो हमें चीजें शो करनी है सामने की ये चीजें हो रही है, यहाँ हमें नजर जानी चाहिए। अगर कोई भी व्यूअर है या ऑब्जर्वर है तो उसको ये चीज दिखनी चाहिए कि ये चीज हो रही है। टू मेक अ लेआउट इजी टू फॉलो, कि हमारा लेआउट इजी होना चाहिए, ज्यादा पंची ना हो, वाइब्रेंट ना हो, ज्यादा हमारी चीजें घिचपिच ना हो, उसके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग हो, लुक वाइज अच्छा हो। टू मेक द टाइप एज लेजिबल एज
पॉसिबल, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो डिज़ाइन है, वो लेजिबल होना चाहिए, जितना मोस्टली पॉसिबल हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लुक वाइज अच्छा हो या इंटरेस्टिंग हो, प्रॉपर स्पेसिंग हो। इसमें ये कुछ टिप्स है जो मैं जनरली फॉलो करता हूँ स्पेस के मामले में। वाइट स्पेस इज वाइटल टू graphic design. The key is to adjust enough white space so that I know where to go and can rest a bit. जैसे कोई डिजाइन है, बहुत ज्यादा पंची कलर है या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन है, तो सारी चीजें कोई नहीं पढ़ता है, जो मेन चीज हाईलाइट हो रही है सिर्फ उसी कोई चीज कोई देखता है। अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट, हम प्रॉपर एडवर्टीजमेंट नहीं देखते हैं, जैसे उसमें नीचे साइड में हर एडवर्टीजमेंट पर टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जिसकी नजर या किसी भी व्यूअर की नजर वहां बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो प्रॉपर हमें वो चीज स्पेस मेंटेन करनी होती है कि जो हम वाइट का कहाँ का यूज कर रहे हैं। वी कैन कंट्रोल वाइट स्पेसेस इन द फॉलोइंग लोकेशन। हम वाइट्स को कहाँ का यूज कर सकते हैं, टू मार्जिन द मार्जिन के लिए या स्पेस की देने के लिए। एंड द स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। गटर्स, गटर्स का मतलब होता है द स्पेस बिटवीन टू कॉलम्स। अगर दो हमारी चीजें हैं, उसके बीच का स्पेस कितना आ रहा है। दो कॉलम्स है, जो लाइंस है, कॉलम्स हमारी स्ट्रेट लाइंस होती है, जो साइड साइड में बॉर्डर्स देते हैं उसे कॉलम्स कहते हैं। तो उनके बीच में स्पेस कितना आ रहा है, या फिर उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये दो चीज के बीच में इतना गैप है। एंड टू सराउंड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, जो हमारा टेक्स्ट है या ग्राफिक्स है उसके साइड में सराउंडिंग के लिए, कि उधर अट्रैक्टिव लगे, कि नोटिस करने के लिए कि वो चीज हो रही है यहाँ पे। ये रहा। फिर स्पेस में दो चीजें होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस। जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो हमें नोटिस कराना है, वो हमारा पॉजिटिव हुआ, और नेगेटिव जो हमारा बैकग्राउंड हुआ है, उस जो पॉजिटिव चीज को कवर कर रही है उसको हम यूज कर रहे हैं। जैसे हम साइड में मार्जिन देंगे तो हमने वाइट मार्जिन दे दी 1-1 इंच, तो जो बीच का हमारा कंटेंट हुआ वो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव स्पेस। और जो साइड वाला बाउंड्री हो गई वो हमारी नेगेटिव स्पेस हो गई इन द टर्म ऑफ ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन के टर्म में हम ये हमारा ये रहता है स्पेस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेसिंग। फिर नेक्स्ट वन हमारा टेक्सचर। टेक्सचर इज द सरफेस लुक एंड फील ऑफ डिजाइन। इट एड्स डेप्थ एंड विजुअल इंटरेस्ट। जैसे हमारा कपड़े लेने जाते हैं तो उसमें हम टेक्सचर देखते हैं कि कपड़ा है कैसा, कपड़े की क्वालिटी कैसी है। कि इंडियंस तो नॉर्मली कपड़ा लेते हैं तो टच जरूर करती है, फील जरूर करते हैं कि कपड़ा हम ले रहे हैं तो है कैसा। सेम वही चीज होती है टेक्सचर डिजाइन के मामले में, कि जो हमारा कलर्स है तो वो प्रॉपरली टेक्सचर्ड है कि नहीं है, जो हमने कंटेंट बनाया है, जो हमारा सरफेस है ऊपर की, जो हमारी क्वालिटी, फाइनल क्वालिटी निकल के आ रही है, या फिर जो डिजाइन का फील है कंप्लीट प्रिंट होने के बाद में उसका क्वालिटी कैसा है, उसका लुक एंड फील कैसा है। टेक्सचर कैन बी यूज टू गिव अ प्रिंटेड पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन और वेब पेज अ मूड और पर्सनैलिटी। अगर सिंपली अगर हम प्रिंटेड पब्लिकेशन की बात करें तो नॉर्मल हमारा प्रेजेंटेशन कैसा आ रहा है, पब्लिश होने के बाद जो हमने प्रिंट किया उसका नॉर्मल प्रेजेंटेशन कैसी है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है। या फिर अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेब पेज की बात कर रहे हैं तो वेब पेज का टेक्सचर कैसा है, ओवरऑल हमारा वेब पेज दिखने में जो फर्स्ट लुक होता है वो कैसा है। एंड टू शो दी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब यहाँ इंसान की पर्सनैलिटी नहीं है, डिजाइन की पर्सनैलिटी की बात हो रही है, कि डिजाइन हमारा कहना क्या चाह रहा है, हम उस चीज से समझ गए रहे हैं। एंड नेक्स्ट, क्रिएट कॉन्ट्रास्ट फॉर इंटरेस्ट, जो नॉर्मली होता ही है। टू फूल द आईज, यहाँ पे मतलब है कि जो हम चीजें दिखाना चाह रहे हैं वो चीजें है, वो चीजें हो रही है, लेकिन वो एग्जैक्टली हो नहीं रही है। अगर हमारा डिजाइन है देखने में तो अच्छा है, लेकिन पास जाके हम फील कर रहे हैं तो वैसा नहीं है, वो बिकॉज ऑफ टेक्सचर की वजह से। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है जो देखने में अच्छा है, लेकिन अब अगर हम बारीकी से चेक करें तो उतना अच्छा नहीं है उसके लिए। तो प्रोवोक इमोशंस, इमोशन शो करने के लिए अगर टेक्सचर्ड है, बिल्कुल पंची है, या फिर उसके अंदर ऊपर नीचे चीजें हो रही है तो क्या शो कर रही है। जैसे हम 3D डिजाइन बनाते हैं तो उसमें हम पूरे चीजें शो करते हैं, तो हमारे वो इमोशंस आ गया। क्रिएटिंग अ फीलिंग और रिचनेस एंड डेप्थ, उसके लिए भी यूज करते हैं कि उसके जो ओवरऑल फील क्या आ रही है प्रोडक्ट की, या फिर उसके अंदर डेप्थ या क्या है। तो इसमें हमारा ये टेक्सचर गाइड है कि नॉर्मली किस किस तरह के हम टेक्सचर देखते हैं जो हमारा बैकग्राउंड में शो करना है हमें।
ये नॉर्मली हम इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग भी कह सकते हैं या फिर उसमें भी कह सकते हैं। ये कुछ टेक्सचर की गाइड है। यहाँ पे जैसे हमारा ये हार्ट शेप का है, ये हमारा राउंड राउंड शेप का कर्वी शेप है, ये हमारा बबल शेप में है, ये जिगजैग या जिगजैग लाइन हो गई, ये इर्रेगुलर शेप्स हो गया, ये हमारा प्रॉपर स्मॉल डॉट्स हो गए, ये हमारा टेक्सचर्स में आता है। नेक्स्ट हो गया हमारा कंपोनेंट स्केल। स्केल हमारा सिंपल साइज ऑफ एलिमेंट। स्केल जो हम कहना चाह रहे हैं कि एलिमेंट्स है वो उसकी साइज कितनी है। सिंपल स्केल इज द साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिजाइन। जो डिजाइन के अंदर के एलिमेंट्स है उसकी साइज कितनी है, उसकी मेजरमेंट कितनी है। इट इम्पैक्ट्स द व्यूअर बाय क्रिएटिंग एम्फेसिस एंड द विजुअल इंटरेस्ट। जो हमारा व्यूअर है वो देखना क्या चाह रहा है या फिर उसके अंदर इंटरेस्ट कैसे आ रही है। जैसे अगर हमने कोई भी डिजाइन बनाया तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर हेडलाइंस है उसकी हमने उसको हम साइज बड़ा रखेंगे, उसको हम फॉन्ट साइज बड़ा रखेंगे। Size can be used to so which element is the most important by making it the largest। जो हमारा most important है उसकी size हमने बढ़ा दी, उसका font size हमने ज़्यादा रख दी। Make all elements easy to see। हमने proper scaling के साथ में जो हमारा main headlines है उसको हमने ज़्यादा बड़ा रख दिया। फिर उसके बाद सब headings आती है, जो हमारा कंपनी का मोटो होता है या सब हेडिंग्स होती है उसका करने के लिए। फिर जो नीचे मेन कंटेंट्स है उसको, तो जो और सारे एलिमेंट्स है वो प्रॉपर साइज देख के टू सी ऑल द एलिमेंट्स अट्रैक्ट अटेंशन। जैसे कुछ चीज जो हमारी इंपॉर्टेंट है तो उसको हमें दिखाना है कि ये व्यूअर देखे, उसको देखना चाहिए, तो उसके लिए अटेंशन के लिए। तो जैसे हमने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया या डिजाइन बनाई तो जो हमारा हेडिंग है वो दिखाने के लिए कि यूजर उसको देखे या फिर जो व्यूअर है हमारा वो इसे नोटिस करे, देखे या फिर उसे पसंद करे या उसके तरफ अट्रैक्ट हो। थर्ड, टू कॉन्ट्रास्ट और एलिमेंट्स टू क्रिएट इंटरेस्ट। ये भी सिंपल वही है इंटरेस्ट के लिए। एस्टैब्लिश अ कंसिस्टेंट लुक थ्रू आउट अ प्रिंटेड पब्लिकेशन ऑफ वेब पेज। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, फाइनल डिजाइन निकल के आ रहा है, उसका लुक कैसा है। या ये हमारा सिंपल प्रिंटेड पब्लिकेशन के टर्म में भी हो सकता है या वेब पेज के टर्म में। जो अगर हमारी वेबसाइट है उसका पूरा कंप्लीट लेआउट है कि उसके अंदर चीजें क्या है, एलिमेंट्स क्या है, शो क्या करना चाह रही है, वो चीजें हो गई हमारी स्केलिंग में। जैसे ये रहा एग्जांपल के लिए, ये हमारा एक बुक कवर है तो इसका फर्स्ट जो नेम होगा उसका हमने साइज बढ़ा रखा है। डिजाइन बाय नेचर हमारा बुक का नाम होगा। सब हेडिंग ये हो गई यूजिंग यूनिवर्सल फॉर्म्स एंड प्रिंसिपल। जो हम इंटेंसिटी या प्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो हमारा कलर है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेड कलर कह रहे हैं तो वो रेड हमारा कितना प्योर है, ये प्योरिटी कितनी है। सिंपल अगर हम रेड करना चाह रहे हैं तो रेड कलर्स में भी अलग अलग टाइप्स के रेड होते हैं। एक रोज रेड होता है, एक हमारा ब्लड रेड होता है जो डार्क रेड हो गया, फिर रेड में हमारा मरून होता है जो बिल्कुल डार्केस्ट होता है। तो जो हम कलर्स की प्योरिटी की बात करेंगे ना, जो कलर्स की इंटेंसिटी कितनी है या फिर कलर हमारा कितना प्योर है। जो नॉर्मल हम घर पे भी वो लगाते हैं, पेंटिंग्स हो रही है कि वो कलर हमारा कितना प्योर है। अगर हम रेड कलर दे रहे हैं तो आफ्टर द पेंटिंग हमारे जो सामने से जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रही है, जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन आ रही है वो कितनी अच्छी है या कितनी यूजफुल है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ये नहीं कि कलर हमारा फेड हो गया, लगाते वक्त हमने रेड किया और कलर जो सूख गया उसके बाद हमारा कलर पिंक हो गया। तो वो चीज होती है कि कलर हमारी प्योरिटी कितनी है, कलर्स की प्योरिटी कितनी है या उसकी इंटेंसिटी कितनी है। एंड लास्ट है हमारा सेवंथ एलिमेंट, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी, सिंपल टाइपोग्राफी इज द स्टाइलिंग ऑफ वर्ड्स यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट्स एंड साइज। जो हम टाइप कर रहे हैं, जो हमारे वर्ड्स है उसकी फॉन्ट्स क्या है, उसके साइज क्या है। जस्ट लाइक कलर्स एंड शेप, टाइपोग्राफी एक्सप्रेसेस द नेचर ऑफ डिजाइन। जो हमने प्रोडक्ट, जो हमारा फाइनल डिजाइन निकल के आ रहा है उसके अंदर फॉन्ट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं या फिर उसकी साइज क्या है। साइज हमने बड़ा रखना है, छोटा रखना है, फॉन्ट हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। अगर हम इंक्लाइन करना चाहते हैं इटैलिक में तो इटैलिक करना है। वो चीज टाइपोग्राफी भी हमारा सेम, जो नेचर को रिप्रेजेंट करता है, नेचर ऑफ द डिजाइन को एक्सप्रेस करता है कि फाइनल हमें चीज आउटपुट हमें क्या चाहिए या फिर हमें कितना आउटपुट चाहिए। जो जो हमारे डिजायर्ड डिजाइन है उसका
वो उससे रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब बनाना हम कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गया। So typography can be used to lead the eye across a page, such as running a dark to light gradient background। जैसे अगर हमारा बैकग्राउंड में है तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं कि जो हमारी हम रिप्रेजेंट करना क्या चाह रहे हैं। अगर हम उसमें इन टर्म्स ऑफ डार्क और लाइट कलर की बात करें तो हम लाइट टू डार्क लेके जा रहे हैं चीज़ें, या फिर डार्क टू लाइट जा रहे हैं। ये नहीं कि सारी चीज़ हमने एक साथ मिक्स कर दी। टू क्रिएट अ पैटर्न, हमने प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि ये चीज़ हमने स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें हो रही है, ऐसे ऐसे डिज़ाइन हमने बनाए हैं प्रॉपर पैटर्न से स्टेप्स को लेते हुए। टू गिव मी इल्यूजन ऑफ वॉल्यूम एंड दैट बाय एडिंग शेडिंग टू एन एरिया। टाइपोग्राफी के लिए जैसे हम कलर, जैसे ये रहा, यहाँ मैंने ये फॉन्ट लिया हुआ है, इसके हमने मैंने शेड करने के लिए जो बैकग्राउंड में ब्लरी सा दिख रहा है उसे हम शेडिंग कहते हैं। टू हाईलाइट द वर्ड, इस चीज़ को हमने हाईलाइट करने के लिए शेडिंग करी है कि कितना लाइट आ रहा है कितना डार्क है। टू क्रिएट अ इमेज ऑफ लाइटनेस और डार्क, ऐसे अगर मेरे को इसको डार्क करना है तो मैं इसे बोल्ड कर दूंगा, लाइट करना है तो मैं इसे ग्रे में मिक्स कर दूंगा, तो वो चीज़ हमारी लाइट हो जाएगी। टू मेक अ लेआउट ड्रामेटिक विद लार्ज एरियाज ऑफ डार्क और लाइट शेडिंग, वही शेडिंग करने के लिए कि हमारा लगे कि कुछ चीज़ें हो रही है, ये नहीं कि हमें सामने से बताना पड़ रहा है कि अगर ये मेरा डिज़ाइन है तो ये डिज़ाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो चीज़ें हमें होते हुए दिखे डिज़ाइन पे, ना कि हमें वर्ड्स में बताना पड़े। टू एम्फसाइज एन एलिमेंट, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड ईच अदर, कि जैसे चीज़ें हो रही है कि सारी चीज़ें सामने होती हुई नज़र है, ये नहीं कि सारे इधर उधर मिक्स चीज़ें हैं, कि अपीयर कैसा हो रहा है, सामने से रिप्रेजेंट कैसा हो रहा है, वो चीज़ें करनी, उस चीज़ के लिए हम टाइपोग्राफी का यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। फिर नेक्स्ट में हम आगे की वो करेंगे कि हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यूज़ करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या हम प्रोसेस लेते हैं।